Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Today, result of IBPS clerk came, and it is a surprising result. On one side, thousands of candidates cleared the examination, and they have moved to stage second, that is mains examination. On the other side, lakhs of candidates could not move to next stage. The reason is that total number of applications were 11.44 lakhs, and it is expected that with the vacancies around 10,000, around 1 lakh people, 1 lakh candidate might have moved to main level, but the exact number will only be known when people will appear for the main examination. Now, what can be reason for this surprising result? That despite high attempts, many candidates could not clear the pre-examination, although they were used to clear pre-examination in earlier years. Even there are cases those have qualified the IBPS PO or other exam pre, but could not make it in this examination. There can be three factors. One is normalization, because unless scorecard comes, we are not aware what level of normalization has happened, whether your score is increased or your score is decreased. That you will only come to know when scorecard is out. Second reason is these candidates might have cleared the overall cutoff, but missed in one or two subject sectional cutoffs. This can be one casualty. Third reason is overall cutoff is high because large number of candidates performed very well this time in pre-examination. So as more and more candidates performed well, so with the slight difference of marks, somebody might be in and somebody might be out. And this entire analysis can only happen when scorecards are out. At this stage, it is very difficult to analyze the result. Now, what are the options before the candidate? Because many of you have asked me, sir, put a video and suggest what is the way forward. One is you can lodge a complaint in IBPS portal, requesting for rechecking of your result or asking the reason why you have not qualified. Whether they will entertain it or not, it is doubtful. And the second way is reconcile with the result and start fresh preparation for next year examination, or focus on the exams where you have cleared the pre. So you can opt for either of these. As more days will pass, we will have more information and more clarity. But definitely by seeing the comments, it is a matter of concern that large number of candidates could not make it to next stage, where the candidates have also made it to the next stage. So both type of candidates are there. Those have made it to mains, those could not made it to mains. So as the time will pass, we will get more information and I will share with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया और बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट ये सामने आया है, जहां एक तरफ हजारों कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को पास किया है और वो मेन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इसको पास नहीं कर पाए हैं और अगले स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हैं. अगर हम आंकड़ों को देखें तो 11.44 लाख एप्लीकेशंस इसके अंदर थी. अब कैंडिडेट कितने थे, क्योंकि कईयों की मल्टीपल एप्लीकेशन भी होती है, तो यहाँ से जानना मुश्किल है. इसमें से लगभग 1 लाख कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे होंगे, ऐसी संभावना है. अगर हम एज्यूम कर रहे हैं 10,000 वैकेंसीज ऑल इंडिया थी.
अब जो लोग नहीं हो पाए हैं उनका क्या कारण हो सकता है, ये सबके मन में प्रश्न आ रहा है। और 3 मुख्य कारण इसके हो सकते हैं। पहला है नॉर्मलाइजेशन, कि किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, किस शिफ्ट के साथ किस तरह की नॉर्मलाइजेशन हुई है, ये स्कोर कार्ड आने पर ही पता लगेगा। दूसरा है कि कैंडिडेट ने ओवरऑल कट ऑफ तो पार कर लिया अपने स्टेट का, पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाया, ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि ओवरऑल कट ऑफ ही हाई है आपके स्टेट का, क्योंकि बहुत अधिक लोगों का इस बार अच्छा पेपर हुआ है। तो जब बहुत अधिक लोगों का अच्छा पेपर होता है तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग पास हो गए हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से ही पास हुए हों, और जो नहीं पास हुए हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से ही रह गए हों। तो ये एनालिसिस भी आपका स्कोर कार्ड आने के बाद ही होगा। तो जैसे जैसे और सूचना मिलेगी तब हम इसको और डीपली एनालाइज कर पाएंगे। पर अभी आपके पास क्या 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो रिड्रेसल सेल है, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही नहीं है और आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस में उनको रीचेकिंग के लिए भी कह सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब उसका कोई असर होता है नहीं होता है ये तो नहीं कहा जा सकता। कई बार रिचुअल रिप्लाई भी आता है और लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जाती हैं, तो हो सकता है कुछ कंसिडरेशन भी हो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप IBPS की वेबसाइट पे जाकर रिड्रेसल में अपनी बात रखें, क्योंकि ये आपने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा ये है कि जो भी रिजल्ट आ गया, यहाँ से हम उन एग्ज़ाम्स पे फोकस करें जहाँ पर हमारा प्री पास हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ऑफिसर का प्री पास हो चुका है या कोई और प्री पास हो चुका है, तो उनको फिर उस एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जिनका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है उनको आने वाले ईयर्स में तैयारी के लिए जुटना चाहिए। चॉइस इसमें आपको चुननी है। अब जैसे जैसे और सूचना मिलती जाएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। रिजल्ट सरप्राइजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट है, बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो जहाँ काफ़ी लोग पास हुए हैं, काफ़ी लोग पास नहीं भी हुए हैं, तो चौंकाने वाला ही माना जाएगा। बट जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता तो अनुमान के आधार पर कहना मुश्किल है कि क्या कारण हुआ है। अगर तो कट ऑफ हाई या जो 3 कारण मैंने बताए हैं, जब ये आएगा तभी हम एनालाइज कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।